Hello students, in today's session we are going to start the last lesson, chapter 1 from Flamingo, written by Alphonse Daudet. Let us know a little bit about the author first. Alphonse Daudet is a French novelist, poet and short story writer. He was born on 13 May 1840 in Nîmes, France, and died on 16th December 1897 at the age of 56 in Paris, France. He began his career as a school teacher in Els, Gard, in south of France. And after 1 year of teaching, he abandoned that profession and took up journalism in Paris and also started writing. 1 साल तक टीचिंग का काम करने के बाद इट डिड नॉट सूट हिम, उसको अच्छा नहीं लगा तो उसने छोड़ दिया और अपने ब्रदर के पास वो पेरिस फ्रांस में चला गया एंड ही टुक अप द प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म और साथ में उन्होंने लिखना भी शुरू किया. हिज पोएम्स वर कलेक्टेड इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम. उनके छोटे लिखे हुए पोएम्स दैट वर कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ला अमोरस एंड इट वॉज हिज फर्स्ट बुक विच वॉज पब्लिश्ड इन 1858, विच मीन्स द लवर्स इन फ्रेंच. The last lesson is an excerpt. The lesson which you are going to read today is an excerpt from his book Contes de Launy. It was published in 1873, which means The Monday Tales in English. It is in fact a collection of 1900 short stories. Now let us know a little bit about the background of the story. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War. It was fought between 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Otto von Bismarck. Otto von Bismarck was a conservative German statesman who masterminded the unification of Germany in 1871, and ultimately they won some parts of France named as Alsace and Lorraine. At that time Germany was the combination of Poland and parts of Austria also. उस समय ये सब एक साथ थे, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और जर्मनी सब साथ में थे. इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज फ्रांस. You can see France, and it is adjacent to the country Germany, and after Germany there exists Poland and Austria. So children, Germany won the areas of France named as Alsace and Lorraine, and the new rulers passed a rule that the teaching of French will be stopped in the schools of France in those areas. The order came from Berlin that German will be the official language of these regions, and the school will teach German in place of their language French. Now there are few expressions which you have to infer the meaning of these expressions while reading text. So we will discuss these expressions later on after this reading. So let us discuss little bit about the summary of the chapter. The narrator. It is narrated by an 11-year-old boy named Franz. एक छोटा सा लड़का फ्रांस है जो ये स्टोरी नरेट करता है. The narrator Franz has started for school very late that morning. उस दिन फ्रांस स्कूल के लिए लेट हो जाता है. He feared his class teacher. उसको अपने क्लास टीचर का डर है. वुड क्वेश्चन हिम ऑन पार्टिसिपल. जिन्होंने लेसन क्या तैयार करने को दिया था, पार्टिसिपल्स पे लेसन तैयार करने को दिया था. चिल्ड्रेन यू नो पार्टिसिपल्स आर पार्ट ऑफ ग्रामर, नॉन फाइनाइट वर्ब्स. तो उसमें उन्होंने टीचर ने उनको लेसन तैयार करने के लिए दिया था. द नरेटर डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट. नरेटर फ्रांस को, उस छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं है पार्टिसिपल के बारे में. सो ही डजंट नो हाउ टू प्लीज़ हिज टीचर. अपने टीचर को कैसे खुश करना है. हेंस ही एक्सपेक्टेड ए स्कोल्डिंग फ्रॉम हिम. तो वो डरता है कि आज उसको टीचर से डांट पड़ेगी क्योंकि उसने अपना लेसन प्रिपेयर नहीं किया है. ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. वो सोचता है कुछ समय के लिए कि वो बाहर ही रहे, स्कूल ना जाए. घर से तो निकल चुका है स्कूल के लिए, लेकिन सोचता है कि बाहर ही रहे, स्कूल तक न जाए. बिकॉज वेदर वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट. उस दिन बहुत ही सुहाना था तो उसको लगता है कि क्यों ना वो बाहर ही समय बिता ले स्कूल जाने के बदले. ऑन हिज सेकेंड थॉट ही डिसाइडेड अदरवाइज. लेकिन उसको दूसरा ख्याल आता है और दूसरे ख्याल के साथ वो डिसाइड करता है
कि नहीं उसको स्कूल जाना चाहिए एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, जल्दी से स्कूल की तरफ निकल जाता है। एज फ्रांस वॉक पास द टाउन हॉल एक बड़ी सी ऑफिशियल बिल्डिंग है, ही सॉ अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। उसको बुलेटिन बोर्ड मीन्स अ काइंड ऑफ डिस्प्ले बोर्ड जहाँ पे कि जो भी ऑर्डर्स आते हैं बर्लिन से, बिकॉज बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, जिसने कि अल्सैसे और लोरेन को कैप्चर कर लिया था। तो वहाँ से जो भी बर्लिन से ऑर्डर आते हैं तो दैट इज़ पेस्टेड ऑन दैट बुलेटिन बोर्ड, वो ऑर्डर पेस्ट किया जाता है बुलेटिन बोर्ड पे, विच डिस्प्लेड एट ऑल बैड न्यूज़ फॉर 2 ईयर्स। 70 और 71 के दौरान जो भी बुरे न्यूज़ थे वो सभी उसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही उन लोगों को मिलते थे। द पीपल यूजुअली गॉट द न्यूज़ ऑफ लॉस्ट बैटल्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओनली फ्रॉम देयर। तो लोगों को सारे जो इन्फॉर्मेशन थे, बैड न्यूज़ थे लॉस्ट बैटल के, वो सारे कुछ वहीं बुलेटिन बोर्ड से ही पता चलता था। यूजुअली देयर वॉज लॉट ऑफ हसल एंड बसल व्हेन द स्कूल बिगन। नॉर्मली स्कूल जब स्टार्ट होता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल हुआ करता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, द लेसन ओरली रिपीटेड लाउडली इन यूनिशन क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कमोशन। चारों तरफ बेंच खुलने और बंद होने की आवाज़ें और एक साथ एक स्वर में बच्चों की पढ़ाई, इनका बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हंगामा हुआ करता था। बट नाउ इट वॉज़ ऑल सो स्टिल। लेकिन आज का सिचुएशन कुछ अलग था, आज सब कुछ बहुत शांत था। ही कुड डिपेंड ऑन द कमोशन टू गेट टू हिज डेस्क। ऐसा सोचा फ्रांस ने कि अगर शोरगुल वहाँ पे होगा तो कोई भी नोटिस नहीं करेगा कि फ्रांस कब अपनी डेस्क पे पहुँच गया, विदाउट बीइंग नोटिस। बट नाउ ही वॉज इन बिफोर एवरीबॉडी। लेकिन अब उसको जाना पड़ रहा है क्योंकि सब कुछ बहुत शांत है, तो उसको एंटर करना पड़ा जब सब लोग क्वाइटली अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। ही ब्लास्ट एंड वॉज क्वाइट फ्राइटेंड। वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस होता है, शर्मिंदा होता है और डर जाता है क्योंकि सब लोग क्लासरूम में चुपचाप अपनी जगह पे बैठे हुए थे और ऐसे समय में फ्रांस को क्लासरूम में एंटर करना होता है। बट फॉर्चुनेटली फॉर हिम नथिंग हैपेंड। ही वॉज उसको स्कोल्डिंग मिले, उसके टीचर जो है मिस्टर एम हेमल, वो उसको डांटें लेट आने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नो पनिशमेंट। एम हेमल सॉ एंड आस्क्ड हिम वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट। एम हेमल उसको देखते हैं और उसको बहुत ही पोलाइटली कहते हैं कि फ्रांस अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। एम हेमल वॉज इन फॉर्मल क्लोथ्स दैट ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और एम हेमल हैड वॉज इन स्पेशल अटायर। वो खास ड्रेस में थे जो वो कब पहना करते थे, जब इंस्पेक्शन के लिए बाहर से डिग्नेटरीज आते थे, आउटसाइडर्स आते थे स्कूल इंस्पेक्शन के लिए, और या तो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डेज को वो पहना करते थे। द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज। आज उसको सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, एंड साइलेंट, क्वाइट, शांत था सब कुछ। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वॉज द प्रेजेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग, आश्चर्य की बात ये थी कि गांव के जो बुज़ुर्ग थे वो क्लासरूम में आज बैठे हुए थे। दे वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस। पीछे की बेंच पे वो चुपचाप बैठे हुए थे। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर। एम हेमल अपने चेयर पे बैठते हैं, एंड स्पोक इन ग्रेव एंड जेंटल टोन, और बहुत ही गंभीर और शांत मुद्रा में बात अपनी स्टार्ट करते हैं। माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आज मेरे बच्चों, आज का जो ये लेसन है वो आपका लास्ट लेसन होगा जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ही टोल्ड देम दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। और वो आगे बताते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सासे, और एल्सासे के स्कूल्स में आगे से केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर वुड जॉइन द नेक्स्ट डे। मास्टर, जो अगला मास्टर है जर्मन पढ़ाने वाला, ऑब्वियसली ही वॉज अ फ्रेंच टीचर, एम हेमल वॉज अ फ्रेंच टीचर, तो दूसरा मास्टर आने वाला है अगले दिन से। तो आज एम हेमल का लास्ट दिन है। इट वॉज़ देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, और ये आज उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन है जो वो अब इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। ही वॉन्टेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, और एम हेमल चाहते थे कि वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली अपना लेसन सुने। द नरेटर फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन। अब फ्रांस को रियलाइज़ होता है एक्चुअल सिचुएशन, वाई इट वॉज सो स्ट्रेंज एंड क्वाइट। क्यों आज स्कूल संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था, क्यों सब कुछ इतना शांत था, क्यों क्लासरूम में विलेज एल्डर्स, गांव के बुज़ुर्ग क्यों बैठे हुए हैं पीछे के बेंचेस पे। अब वो रियलाइज़ करता है कि आज तो फ्रेंच का लास्ट लेसन है, और कल से उनकी जो ये मदर टंग है, दे वोंट बी एबल टू लर्न,
वो अब वो इसको सीख नहीं पाएंगे। तो अब उसको बहुत तकलीफ़ महसूस होती है कि आज तक उसने क्यों पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। ही नेवर लाइक्ड हिज बुक, उसको अपनी किताबों से कभी भी प्यार नहीं था, उनको वो कभी पसंद नहीं थे। ही डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट इन ग्रामर एंड हिस्ट्री, ग्रामर और हिस्ट्री तो उसको कभी भी पसंद ही नहीं थे। बट नाउ ही डेवलप्ड अ फैसिनेशन फॉर देम, लेकिन अचानक उसके अंदर एक अट्रैक्शन आ जाता है एज सुन एज ही लिसन्स दैट ही इज़ गोइंग टू लूज दीज ऑल थिंग्स फ्रॉम टुमारो नेक्स्ट डे। सो एट वंस अ काइंड ऑफ फैसिनेशन डेवलप्स इनसाइड हिम। ही हैज़ स्टार्टेड लाइकिंग एम हैमल, और वो अचानक एम हैमल के लिए भी उसके अंदर लाइकिंग डेवलप हो जाती है, अपने टीचर को भी, हु वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड क्रैंकी, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और हमेशा ही वॉज़ हैविंग अ रूलर अंडर हिज आर्म्स। तो वो उसको कभी भी पसंद नहीं आते थे, कन्वेंशनल टीचर की तरह, परंपरागत टीचर की तरह वो एक रूलर लेके चला करते थे और बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थे, क्रैंकी थे, तो इसलिए एम हैमल को वो कभी पसंद नहीं करता था। लेकिन आज जब एम हैमल ने बताया कि उनका ये लास्ट फ्रेंच क्लास है, तो उसको एम हैमल के लिए भी लाइकिंग डेवलप हो जाती है फ्रांस के अंदर। द आइडिया दैट ही वुड नॉट टीच देम एनी मोर, ये विचार कि अब एम हैमल उनको आगे कभी भी नहीं पढ़ाएंगे, मेड फ्रांस फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड द क्रैंकी एटीट्यूड ही हैड टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स व्हेन इट वाज हिज टर्न टू रिसाइट द पार्टिसिपल। अब क्योंकि उन्होंने होमवर्क में पार्टिसिपल के लेसन्स प्रिपेयर करने के लिए दिए थे, तो वो फ्रांस का भी टर्न आता है बताने का पार्टिसिपल के रूल। फ्रांस गॉट मिक्सड अप एंड कन्फ्यूज्ड, लेकिन जैसे ही उसका टर्न आता है पार्टिसिपल के रूल्स बताने का, तो वो मिक्सड अप हो जाता है। ही वॉज कन्फ्यूज्ड, बता नहीं पाता कुछ भी। बट सरप्राइजिंगली एम हैमल डिडंट स्कोल्ड हिम, लेकिन जैसा कि यूजुअली होता था कि उसको डांट पड़ती थी या कभी कभी पिटाई भी पड़ जाती थी, आज एम हैमल ने उसको बिल्कुल भी नहीं डांटा। एम हैमल showed his concern that people of Alsace generally gave no importance to French, लेकिन एम हैमल दुखी होते हैं क्योंकि अल्सासे के लोगों ने कभी भी फ्रेंच को इतना इम्पॉर्टेंट ज़रूरी नहीं समझा है। दे इग्नोर्ड लर्निंग देयर ओन नेटिव लैंग्वेज, और वो इसके लिए भी दुखी है कि अल्सासे के लोगों ने, नेटिव्स ने, कभी भी फ्रेंच को सीखना ज़रूरी नहीं समझा, हमेशा इग्नोर किया है। फ्रांस वॉज नॉट ओनली एक्सेप्शन एज मेनी अदर्स वर ऑल्सो गिल्टी ऑन दिस रीज़न। कहता है कि फ्रांस अकेला नहीं है, बाकी लोग भी उसके समान ही दोषी हैं अपनी मदर टंग को इग्नोर करने के लिए। He declared that French language was the most beautiful language in the world. एम हैमल का विचार है कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया का सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे सुंदर भाषा है। इट वॉज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, फ्रेंच जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी, साफ़ सुथरी और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। दे मस्ट गार्ड इट एमंग देमसेल्व्स एंड नेवर फॉरगेट इट, और उनको इसकी रक्षा करनी चाहिए और कभी अपने मदर टंग को भूलना नहीं चाहिए। इट अपीयर्ड दैट एम हैमल वॉन्टेड टू गिव देम ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे एम हैमल उनके अंदर जो भी जानकारी है फ्रेंच के बारे में वो सब अपने स्टूडेंट्स को, उस क्लास में बैठे हुए लोगों को इम्पार्ट कर देना चाहते थे, बता देना चाहते थे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसी समय चर्च की घड़ी जो होती है वो 12 बजाती है। द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूसियन सोल्जर्स साउंडेड अंडर देयर विंडो, एंड प्रूसियन सोल्जर्स हु वर रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल, देयर ट्रम्पेट बिगुल जो बजाते हुए अपने ड्रिल से, रेगुलर प्रैक्टिस से लौट रहे हैं, उनके बिगुल की आवाज़ आती है इनके विंडो के पास से। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल इन हिज चेयर, वेरी कलरलेस बिकॉज ऑफ इमोशंस, ही वॉज वेरी डिजेक्टेड, सैड, बहुत दुखी होते हैं इसलिए उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है अपनी चेयर पे खड़े होके। ही ट्राइड टू स्पीक, वो कुछ बोलना चाहते हैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन उनका गला फंस जाता है, कोई ऐसे इमोशंस हैं उनके जो उनको बोलने से रोक लेते हैं। एंड ही वॉज अनेबल टू स्पीक इट आउट। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं। ही टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड रोड एज लार्ज एज ही कुड, वो जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा पूरे बोर्ड पे लिख देते हैं। व्हाट वाज दैट? वीव ला फ्रांस। वीव ला फ्रांस फ्रेंच में इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस।
फ्रांस अमर रहे, ये वो बोर्ड पे बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं। एंड मेड अ जेस्चर टू देम विद हिज हैंड, और अपने हाथ से जेस्चर करते हैं, इशारा करते हैं, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, बिकॉज ही वॉज चोक्ड आउट ऑफ इमोशंस, वो बोल नहीं पा रहे थे, ही वॉज फिल्ड विथ इमोशंस, और इसलिए वो इशारे से बोर्ड की तरफ ही चेहरा किए बोलते हैं उनको कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल ख़त्म हो चुका है, अब आप लोग जा सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर. Then we'll go for reading of the lesson. I hope you understood the summary. Thank you.